رحیم یار خان میں مرکزی انجمن تاجران کا بجلی کے مہنگے بلوں اور مہنگائی کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین نے بجلی کے بل جلا دیے۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مہنگی بجلی اور کمر توڑ مہنگائی کے خلاف کل علامتی ہڑتال ہوگی۔ رحیم یار خان میں تاجر برادری نے بجلی کے مہنگے بلوں اور مہنگائی کے سونامی کے خلاف بڑا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ مرکزی انجمن تاجران، چیمبر آف کامرس، فلورز ملز ایسوسی ایشن، سول سوسائٹی سمیت تمام تاجر تنظیموں و شہریوں کی بڑی تعداد احتجاج میں شامل ہوئی اور مہنگائی کے خلاف شدید نعرے لگائے۔ مظاہرین نے سٹی پل پر احتجاجی دھرنا دیا اور دعا چوک تک احتجاجی ریلی نکالی۔ ان کا کہنا تھا کہ بجلی، گیس، پیٹرول سمیت ہر چیز کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ ناجائز اضافی ٹیکسز کا بوجھ تاجر برادری اور شہریوں کے لیے اٹھانا ناممکن ہو گیا۔ آج ہماری مرکزی انجمن تاجران دوبارہ بیٹھے گی اور ہم کل بھی احتجاج کریں گے اور اس کے بعد 31 تاریخ کو ہم جو ہے پیا جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دیں گے انشاءاللہ۔ جو بجلی کے بلوں کے اوپر ظالمانہ ٹیکس لگ رہے ہیں، تقریباً 12 سے 13 قسم کے ہیں، وہ سب کے سب ختم کیے جائیں اور جو اصلی بجلی کی قیمت بنتی ہے وہ عوام سے لی جائے۔ اگر ہمارے وقت جو حکومت ہے انہوں نے ہمارے مطالبات اور اس عوام کے حق میں فیصلے نہ کیے تو یہی جو احتجاج ہے یہ انشاءاللہ ایوان اسلام آباد کے ایوانوں کو ہلائے گا۔ بجلی کے مہنگے بلوں اور مہنگائی سے تاجر برادری کے کاروبار ٹھپ ہو گئے۔ عام آدمی کے گھر کے بجٹ شدید متاثر ہو گیا۔ حکومت مہنگائی کے سونامی کو فوری کنٹرول کر کے عوام کو ریلیف دے۔ گورنمنٹ کا کام تو آسانیاں پیدا کرنا ہوتا ہے، یہاں پہ گورنمنٹ ہی ڈانگیں چلا رہی ہے ہم لوگوں پہ، چاہے بجلی کا بل ہوں، چاہے سوئی گیس کے بل ہوں، چاہے پیٹرول سستا مہنگا کر کے، اور اپنی عیاشیاں ختم نہیں کر رہے یہ لوگ، ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ سادگی اپنائیں۔ اس وقت جو لوگ مجبور ہیں خودکشیاں کرنے پہ، انڈسٹریلسٹ مجبور ہیں انڈسٹری بند کرنے پہ، خدارہ اس کا حل کیا جائے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جن کو آپ لوگوں نے فری پیٹرول دیا ہوا ہے، فری ڈیزل دیا ہوا ہے، فری گاڑیاں دی ہوئی ہیں، فری بجلی دی ہوئی ہے، ان کے رلے ترلے جو ہے ختم کیے جائیں اور عوام کو ریلیف دیا جائے۔ آئے روز جو مہنگائی کی جاتی ہے پیٹرول ڈیزل کی مد میں، یہ مہنگائی کرنا بہت آسان ہے، کمانا مشکل ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ادارے ایسے بنائے جو مضبوط ہوں اور جو کمائیں، نہ کہ ان اداروں کا بھی بوجھ ایک بجلی کے بل میں ڈال دیا جائے، پیٹرول ڈیزل میں ڈال دیا جائے۔ مرکزی انجمن تاجران کے رہنماؤں نے کہا کہ اگر حکومت نے مطالبات تسلیم نہ کیے، احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے 31 اگست کو مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے۔ کیمرہ مین انور سہیل کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ مظفر گڑھ کے شہریوں کا مہنگی بجلی کے خلاف پارہائے بصیرہ بازار میں شدید احتجاج، حکومت کے خلاف نعرے بازی، بل نظر آتش۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بجلی کی قیمتیں کم نہ کی گئیں تو پورا شہر بند کر دیں گے۔ ملک بھر میں مہنگائی اور بجلی کے بھاری بھرکم بلوں کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ مظفر گڑھ کے شہریوں کا بھی میٹر گھوم گیا۔ بصیرہ بازار میں احتجاج، دوسری جانب مرکزی انجمن تاجران نے پریس کلب کے سامنے میدان لگا لیا۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے بجلی کے بل جلا دیے۔ ہاں جی، یہ جی میرا اس مرتبہ جو 88 یونٹ کا بل ہے وہ 6500 روپے ہے۔ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، پورا پاکستان سراپا احتجاج ہے، لیکن گورنمنٹ وقت کے ان کے کوئی جوں نہیں رینگ رہی، جس کی وجہ سے ملکی حالات دن بہ دن خراب سے خراب تر ہو جا رہے ہیں۔ آپ سے پرسنل گزارش ہے محبت کے ساتھ کہ اس ملک کو قائم دائم رہنے دو۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ عام آدمی 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے، جبکہ مہنگائی تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ پیٹرول، ڈیزل، بجلی اور ادویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے۔ حکومت فوری ریلیف کا بندوبست کرے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ظالمان ٹیکس ختم کیا جائے فوری طور پہ اور بجلی کی قیمتوں کو کم سے کم کیا جائے۔ IMF کو ہمارے ملک کو غلام نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں، ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مظاہرین نے تمام افسران کی مراعات فوری ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بجلی سستی نہ کی گئی تو پورے شہر میں ہڑتال کر دیں گے۔ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ بجلی کے بھاری بھرکم بلوں نے عوام کا میٹر شارٹ کر دیا۔ جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں احتجاج، حاصل پور، لیا، ہارون آباد، راجن پور اور چشتیہ کے شہری بھی سڑکوں پر نکل آئے، حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے بجلی کے بل جلا دیے۔ راجن پور میں انڈس ہائی وے بند، گاڑیوں کی لمبے قطاریں لگ گئیں۔ بجلی کے بھاری بھرکم بلوں نے عوام کا فیوز اڑا دیا۔ حاصل پور میں مزدوروں، ٹریکٹر ٹرالر ڈرائیورز، پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن اور سول سوسائٹی نے میدان لگا لیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بجلی کے بلوں نے ذہنی مریض بنا دیا ہے، افسر شاہی اور ملازمین کی مفت بجلی بند کر کے شہریوں کو ریلیف دیا جائے۔
लिया में बिजली बिलों और महंगाई के खिलाफ अनोखा एहतजाज। समाजी रहनुमा अंजुम सहराई साथियों के हमरा नंगे पांव सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे। अंजुम सहराई का कहना था कि नंगे पांव एहतजाज का मकसद लोगों और हुकूमत को जगाना है। हारूनाबाद के वकला भी ओवर बिलिंग के खिलाफ मैदान में आ गए। बार एसोसिएशन की कॉल पर अदालतों में पेश नहीं हुए। मुजाहिरीन का कहना था कि टैक्सों के खात्मे तक बिल अदा न किए जाएं। वकला बरादरी शहरियों के साथ खड़ी है। बिजली के भारी भरकम बिलों ने आवाम की कमर तोड़ दी। राजनपुर के शहरी भी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर इंडस हाईवे रोड ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। महंगी बिजली ने चिश्तिया के शहरियों का भी मीटर घुमा दिया। ताजर, सिविल सोसाइटी और वकला सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जला दिए। शहरियों का कहना था महंगाई ने खुदकुशी पर मजबूर कर दिया, हुकूमत फौरी रिलीफ दे। मुल्तान के ताजिर भी भारी बिलों से तंग सड़कों पर निकल आए। अंजुमन ताजरान ने गुलशन मार्केट में एहतजाज किया और वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। दूसरी जानिब मुल्तान हाईकोर्ट बार के अहदेदारान भी एहतजाज पर मजबूर हो गए। हुकूमत से फौरी तौर पर एनर्जी पॉलिसी के ऐलान का मुतालबा किया। बिजली की बढ़ती कीमतों ने शहरियों के बाद ताजरों और वकला को भी सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। अंजुमन ताजरान गुलशन मार्केट ने भारी भरकम बिलों के खिलाफ एहतजाज किया और वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के चेयरमैन ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी का कहना था कि वो बिजली के बिल हरगिज अदा नहीं करेंगे। मुतालबा हमारा ये है कि जब तक ये बिजली के बिलों का जो इजाफा इन्होंने किया 100% से ज्यादा ये वापस नहीं लेते, इस महंगाई को वापस नहीं लेते, ये पेट्रोल की कीमतों को वापस नहीं लेते, उस वक्त तक हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। दूसरी जानिब मुल्तान हाईकोर्ट बार के अहदेदारान ने भी महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। जनरल सेक्रेटरी मार हसीब कादिर का कहना था कि हुकूमत एनर्जी पॉलिसी का ऐलान करके घरेलू सार्फिन को सोलर सिस्टम पर सब्सिडी दे। उन्होंने तमाम तबकात से बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जुमेरात को चौक कचहरी पर निकलने की अपील कर दी। ताजिर रहनुमा खालिद महमूद कुरैशी का कहना था कि गरीब की आमदनी 20,000 है और वो 30,000 का बिल कैसे अदा करें। ये कोई इंसाफ है? गरीब बच्चों का पेट पालें या बिल जमा करवाएं। हम तो जाहिर है मुतालबा करेंगे कि आप जो है कोई एनर्जी पॉलिसी दें नई, और जिस तरह आपने पहले 70 साल गुजारा किया है अब इस तरह गुजारा ना करें, लोगों को कोई फौरी रिलीफ दें। आज हमने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि बिजली के निर्खों में जो होश रुबा इजाफा किया है उसको वापस लिया जाए, वरना फिर ये कौम और ये इस मुल्क के जो ताजिर हैं वो सड़कों पर निकल आएंगे और हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर। ताजिर रहनुमा राहुल लियाकत और नदीम कुरैशी ने भी हुकूमत से बिजली का नर्क फौरी कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ फराज रमजान, मुल्तान। बहावलपुर में भी बिजली के भारी बिलों के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। शहरियों के साथ ताजिर भी सड़कों पर निकल आए और बिजली की कीमत में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। उनका कहना था कि बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे, निगरान हुकूमत बिजली की कीमत में इजाफा वापस ले। बहावलपुर के शहरी बिजली बिलों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज। शहरी और ताजर हाथों में बिजली के बिल लेकर सड़कों पर निकल आए और मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया। शहरियों ने रेडियो पाकिस्तान चौक पर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। बिंद्रा पुली पर मुल्तान बहावलपुर रोड को ब्लॉक किया गया, जबकि कतौल अमारा मोड़ के मकीनों ने अहमदपुर रोड को दोनों अतराफ से बंद किए रखा। मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों को आग लगा दी। बिजली के भारी भरकम बिलों पर आग बगोला शहरियों का कहना था कि हुकूमत ने महंगाई की तमाम हदें पार कर दी हैं, बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। हम 500-400 दिहाड़ी कमाने वाले हैं, बच्चों का पेट पालें, जाए वापदा दफ्तर को हम बिल भरे। रिक्शा चलाता हूँ, पेट्रोल महंगा है, 300 लीटर तेल है, क्या करें? आटा लें, बिल भरें, क्या करें? मैंने बैंक से 1 लाख रुपए लोन लेके मैंने बिल पे किया है और मेरे घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं। मैं मस्जिद इमाम हूँ, 10,000 तनख्वाह है, पिछली बार 29,000 बिल भरा है, इस बार 17,000 बिल आ गए। ये बिल कहाँ से भरे? बच्चों को पाले या बिल भरे? 40,000 रुपया बिल आ रहा है जो हम नहीं भर सकते। हम गरीब बंदे हैं, रिक्शा ड्राइवर बंदे हैं भैया, मजदूर बंदे हैं, यहाँ सारे मजदूर खड़े हैं। हम जिगर के मरीज हैं, दवाई नहीं जब बिल भरूं हम कहाँ से चाहिए? 10 रुपए यूनिट बिजली का बिल देंगे और बिल के मामले में कोई टैक्स नहीं अदा करेंगे। 10 रुपए कटा करते रिक्शा वाले ले, 35,000 बिल है, हम कहाँ से भरे? बिजली की कीमत में होशरुबा इजाफे ने ताजरों को भी यकजा कर दिया। मरकजी अंजुमन ताजरान और मुतहिदा मरकजी अंजुमन ताजरान ने मुतहिद होकर चौक फवारा पर एहतजाजी मुजाहरा किया। ताजरों ने बिजली के बिल नजरे आतश कर दिए। सदर अंजुमन ताजरान अहमदपुरी गेट अपना मीटर भी उतार कर ले आए। ताजरों ने 2 सितंबर को मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल की कॉल भी दे दी। इसके बाद जो लावा फटना है उससे हम हुकाम बाला को पहले ही बाखबर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस जालिमाना टैक्सेस को फिर फौर खत्म कर दिया जाए। हमने एक प्लेटफॉर्म इकट्ठे हैं, इसके लिए हमारी जान भी हमारी आन भी हम कुर्बान करेंगे। वहाँ पे अपने अफसरान को वापडा के अहलकारों को नवाजा गया। इस वक्त 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है।
ہم اس لیے احتجاج کے لیے نکلے ہیں، اور آئندہ کا لاہ عمل یہ ہے کہ ہم نے اعلان کیا ہے کہ 2 اکتوبر کو انشاءاللہ 2 سپٹمبر کو انشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر پہیا جام ہڑتال کریں گے۔ غریب عوام پہ اتنا ظلم ڈھایا ہے، بجلی کے بلوں میں اتنا اضافہ کیا ہے، پیٹرول اتنا مہنگا کیا، گیس اتنی مہنگی کی ہے، جس سے مہنگائی میں بھرپور کمر توڑ اضافہ ہوا ہے۔ بجلی کے بھاری بھرکم بل دیکھ کر عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب برداشت نہیں، حکومت بجلی کے بلوں میں فوری کمی کرے۔ کیمرہ ٹیم اور رپورٹر طاہر زویہ کے ساتھ محمود ظہیر، روہی، بھاولپور۔ آگاہ کریں گے سیلابی صورتحال کے حوالے سے۔ سیلاب زدگان پر ایک اور آفت آن پڑی، پانی میں ڈوبے مکینوں پر بجلی کے بل پہاڑ بن کر ٹوٹ پڑے۔ دریائے ستلج کے سیلابی ریلے نے لودھرا میں تباہی مچا دی، رہی سہی کسر بجلی کے بھاری بھرکم بلوں نے پوری کر دی۔ لودھرا کے متاثرین نے بجلی کے بل دریا بٹ کر دیے، کہا جب بچا ہی کچھ نہیں تو بل کیسے ادا کریں۔ اسی طرح لودھرا کے شہری بھی بجلی کے اضافی بلوں سے پریشان ہیں۔ دریائے ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب کے باعث دریائی بیلٹ کے سینکڑوں گھر ڈوب گئے، کسانوں کی سال بھر کی کمائی دریا بہا کر لے گیا۔ اوپر سے محکمہ انتظامیہ نے بھاری بھرکم بل بیچ کر مرے کو مارے شاہ مدار والا کام کر دیا۔ بل اٹھائے لودھرا کے سیلاب متاثرین نے دریا میں کھڑے ہو کر انوکھا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ گھر اور فصلیں سب کچھ ڈوب گیا، اب بھاری بھرکم بل کیسے ادا کریں۔ ساڈے اتنے عذاب نازل تھیا کھڑے، حکومت عذاب نازل تھیا کھڑے، اساں کیڑے پاسے ونجوں؟ اگے 10,000 بل آندا ائی، اوڈو سیلاب کھاندے، ساڈا جئی بڑ گئے، ساڈے باروں سیلاب بلیٹ گئے۔ مہربانی کرو، ہن 20,000 بل، 5,000 ایک گھر دا بل، اساں کیڑے ونجوں؟ اساں تباہ تھے پے، مہربانی کرو، تساں شکریہ ادا تہاڈی، مہربانی کرو ساڈے تے اے عذاب ہٹاؤ۔ حکومت سے ساری اپیل ہے بھائی جان، اساں اگے بہت نقصان ہے چاہتے، بجلی دے بل 15-20 ہزار روپیہ اگے اساں چٹیاں بھرے، ہن دریائی پانی ساکو ریلا آ گئے، اساں پریشان ہیں، ساڈا فصلاں بڑھ گئے، ساڈا جہیں دا خطرہ ہے، اساں بہت پریشان ہیں، لہذا مہربانی تھئی ونجے ساڈے بل جڑے نا ہن معاف کیتے ونجن۔ سیلاب زدگان نے بجلی کے بل دریا میں بہا دیے، کہا جب سب کچھ دریا برد ہو گیا بجلی کے بلز بھی اسی دریا کی نظر کر رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مشتاق بھٹا، روہی، لودھرا۔ جامپور کے نواحی علاقے مظاہروں کے مقام پر دریائے سندھ کا کٹاؤ بدستور جاری۔ محکمہ آبپاشی کی مبینہ نااہلی کے باعث 21 روز بعد بھی ہیرو بند کا شگاف پر نہ کیا جا سکا۔ گھر اور فصلیں تباہ ہونے کی وجہ سے علاقہ مکین پریشان ہے۔ دریائے سندھ نے جامپور کے علاقے موضع ہیرو میں تباہی مچا دی، دریائی کٹاؤ سے درجنوں گھروں کے سینکڑوں افراد کو بے گھر کر دیا، رہی سہی کسر محکمہ آبپاشی کے افسران نے پوری کر دی۔ محکمہ آبپاشی کے افسران کی مبینہ نااہلی کے باعث 21 روز بعد بھی ہیرو بند کا شگاف پر نہ کیا جا سکا، جس پر علاقہ مکین کہتے ہیں کہ ان کے گھر اور فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، ہم بے گھر ہو گئے، انتظامیہ نے بھی لاوارث چھوڑ دیا ہے۔ ہیرو بند پر نیا سپر بند تعمیر کر کے دریا کا رخ موڑا جائے تاکہ ہم مزید بربادی سے بچ سکیں۔ بالکل کام تو یہ کر رہے ہیں، لیکن یہ کام بالکل سست روی کا شکار ہے، جہاں سے کٹاؤ ہوتا ہے وہاں پتھر ڈال دیتے ہیں، یہ مستقل کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کر رہے۔ اگر یہ جو ہے نا دریا کے اندر 100 فٹ یا 200 فٹ اگر یہ دریا کے اندر پتھر ڈال دیں تو دریا کا جو ہے رخ چینج ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایسا کرتے نہیں ہیں۔ جب تک یہ دریا کا رخ تبدیل نہیں کریں گے یہ جو ہے نا بند نہیں بچے گی اور علاقے کو مزید نقصان ہوگا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ کام سست روی کا شکار ہے، محکمہ آبپاشی کا عملہ جہاں دریائی کٹاؤ کرتا ہے وہاں پتھر ڈال دیتا ہے، اس کا مستقل حل نہیں نکالا جا رہا۔ محکمہ آبپاشی جب تک پتھر ڈال کر دریا کا رخ تبدیل نہیں کرتا اس وقت تک بہتری نہیں آئے گی۔ مہربانی کرن دریا کا رخ بدلی کرن، اساں بے گھر تھی گئے، سارے گھر مکان سب سے ڈھائی گئے، سارے بچے کھلے اسمان تلے پن، کوئی انتظامیہ انتظام نہیں کرنا، مہربانی کرن کوشش کرن ہی بند قریب جرا سپر ڈیون 100-200 فٹ جرا تقریباً سپر آ ونجے اتے دریا کا رخ مڑ ویسی ای ساڈا جرا کچھ نہیں بچدی نہ اور بچ گئے ہی ٹائم بھی یہ جڑا پانی کھڑے چا اساں ذلیل نہ ساڈے مال رہ گئے نہ اپنی حفظ و امان نہ بچے۔ علاقہ مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ انتظامیہ کوئی کام نہیں کر رہی، اب دریا کا پانی کم ہو چکا ہے مگر دریا کا رخ تبدیل نہیں کیا جا سکا۔ انہوں نے ضلعی انتظامیہ اور محکمہ آبپاشی کے افسران سے شگاف کو فوری پر کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ انتظامیہ کوئی کام جیسا خاص کہہ نہیں کرنی، پہلے آئی میں تھوڑا ڈھیر کیتے ہیں جن پانی کا زور ہے، ہوں دریا بھی کو جیو تھی گیا لیکن کٹاؤ بند نہیں کیتا، سارے فصلات بھی تباہ تھی چکے ہیں۔ اہل انتظامیہ نال ساری گزارش ہے کہ یہ ہمت کرتے ہیں نال سارا شگاف جو ہے بند کراویں۔
करोड़ों रुपए के पत्थर डालने के बावजूद 21 रोज बाद भी हैरो बंद का शगाफ पुर न हुआ, जो जिला इंतजामिया और महकमा आबपाशी के कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। दरिया सिंध के कटाव से मुतासरा अफराद का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि शगाफ को पुर किया जाए ताकि वो अपने घरों को वापस लौट सकें। कैमरामैन जुनैद जावेद के हमरा जावेद इकबाल रोही, जामपुर। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बहावलनगर, जलालपुर, पीरवाला, लुडन और उस शरीफ में तबाही। हिफाजती बंद टूट गए, फसलें तबाह, सड़कें डूब गईं, जमीनी राबिते कट गए। जलालपुर, पीरवाला में 100 से ज्यादा बस्तियों को रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। दरियाए सतलुज ने बहावल नगर की 140 किलोमीटर दरियाई बेल्ट में तबाही मचा दी। आर्जी हिफाजती बंद टूट गए, फसलें तबाह, बस्तियां ज़ेर-ए-आब, सड़कें पानी में डूब गईं, जमीनी राब्ते कट गए। 1 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर। मिंचनाबाद और चिश्तियां के इलाके भी शदीद मुतासिर। रिलीफ न मिलने पर सैलाब मुतासरीन के शिकवे। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब सैलाबी रैला जलालपुर पीरवाला की हुदूद में दाखिल हो गया। आरसी हिफाजती बंद टूट गए, दर्जनों बस्तियां और सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। 100 से ज्यादा बस्तियों को रेड अलर्ट जारी। इंतजामिया ने मुतासरीन के लिए 5 फ्लड रिलीफ कैंप और 2 खैमा बस्तियां लगा दी। दरियाए सतलुज की लुड्डन में तबाहकारियां जारी, तैयार फसलें तबाह। मकीन अपनी मददाब के तहत बंद बनाने में मसरूफ। हेड इस्लाम पर पानी की सतह तो कम हो गई मगर नुकसान का अजाला ना हो सका। सैलाब मुतासरीन ने फौरी रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। दरियाए सतलुज का सैलाबी रैला उच्च शरीफ भी पहुंच गया। दरियाई बेल्ट में कायम बस्तियां डूब गईं। 30,000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पाक फौज के जवान भी पहुंच गए। मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप भी लगा दिए गए। खड़ी फसलें और जानवरों का चारा तबाह हो गया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सैलाब से बहावलपुर जिला के 3 मवाज़ियात मुकम्मल मुतासर हुए और 55 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। दरियाई पट्टी में 47,000 एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासर हुई हैं। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर की सहाफियों को दरिया सतलुज की तबाही बारे ब्रीफिंग। कहा, 3 आबादियां सैलाब से मुकम्मल मुतासिर हुईं और 55 को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि फसलें भी मुतासिर हुईं। लाखों इंसानों और जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बहावलपुर में 27 मकामात पर फ्लड रिलीफ और मेडिकल कैंप्स कायम किए गए, जिनमें 612 अफराद रहायश पजीर हैं। रिलीफ कैंप्स में मेडिकल टीमें, जानवरों के लिए चारा, सांप काटने की वैक्सीन और दीगर जरूरी अद्वियात दस्तयाब हैं। ग्रेविटी से और जिस वेलोसिटी से ये रेला हमारे पास पहुंचना शुरू हुआ तो उसमें अगेन हमने कुछ 10 दिन लगा के लोगों को कोशिश की कि जितने मैक्सिमम लोग हम निकाल सकते हैं एमिकेबली उनको हम निकालें। और आपने देखा होगा कि हमने इवन पुलिस की असिस्टेंस नहीं ली, लोगों को फोर्स नहीं किया कि वो ज़रूर वहाँ से निकलें। हमारे लिए वो एक अगेन चैलेंज होगा, आप के लिए शायद वो ना हो कि हम क्राइसिस मैनेजमेंट में वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि वी शुड कीप कंट्रोल ऑन आवर नर्व्स। लेकिन ज़ाहिर है जहाँ पे लोगों की जान की हिफाजत या उनके माल की हिफाजत की जिम्मेदारी हो तो फिर आप यू हैव टू गो एन एक्स्ट्रा माइल। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, दरिया सतलुज में अभी सैलाबी रैला गुजर रहा है, लेकिन जिला इंतजामिया की बेहतर हिकमत अमली के तहत हासिलपुर, खैरपुर टामेवाली, बहावलपुर सदर, बहावलपुर सिटी और अहमदपुर शर्किया की शहरी और देही आबादी को बड़े नुकसान से बचा लिया गया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद ज़हीर, रोही, बहावलपुर। मियांवाली में शेख खुरनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी। मजदूर और दिहाड़ीदार तबके के लिए बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया। आपको यहां पर बता रहे हैं कि कमर तोड़ महंगाई की लहर ने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। मिल्क पैक दूध की कीमत में 20 रुपए इजाफा कर दिया गया, जबकि चीनी की कीमत 120 रुपए से 140 रुपए फी किलो हो गई है। कमर तोड़ महंगाई की लहर ने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। मिल्क पैक दूध की कीमत में 20 रुपए इजाफा कर दिया गया। चीनी की कीमत 120 रुपए से 140 रुपए फी किलो हो गई। मुख्तलिफ कंपनियों की चाय 150 रुपए फी किलो के हिसाब से महंगी हो गई। कमर तोड़ महंगाई ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। आए रोज अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफे ने शहरियों के लिए जिंदा रहना मुश्किल बना दिया। मैं कि यार पिछले 15-20 दिन पहले मैं 120 रुपए किलो घिन गया तो हूँ 160 रुपए किलो मिलती पई है। ये क्या बढ़ती घ्यू का पता किया, घ्यू पता नहीं कितने तो कितने पहुंची है। ये होर आम जी चीज हाथ लाने भाई भा लगी पई है। बहुत परेशान हाँ, कोई समझ नहीं आती पई। बंदा तनख्वाहदार जब तब गए उसकी टोटल 15 तो 20 हज़ार तनख्वाह है। उस घर का सिस्टम भी चलावना है, बच्चों का सिस्टम भी चलावना है, स्कूल के खराजात सब कुछ इस पूरा करना है सर।
100 रुपए लीटर रही, 150 थी है, हूँ 300 रुपए तो लीटर पहुंचा पी है। तो हूँ महंगाई के बारे क्या खां, हर शह जो भाई की गल है, भाव लगी पई है। जी शह नहीं हथ लवां तो भाव लगी पई। उधर मोटरसाइकिल पंचर थी गया कि 50 रुपया कहते हैं, कल 120 गिदा ने, क्या आख सकते हैं। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। अलीपुर में बहावल कैनाल से मुलहिका बाईपास रोड टूट फूट का शिकार, जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ गए। सड़क पर नोकीले पत्थर निकलने के बाद हादसात मामूल बन गए। गाड़ियां खटारा बन गई, मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। अलीपुर शहर में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए 10 साल कबल बहावल कैनाल से मुल्हिका बाईपास रोड बनाया गया। नाकिस मटेरियल से बनी सड़क 6 माह बाद ही खस्ता हाली का शिकार हो गई। सड़क पर नोकीले पत्थर निकलने की वजह से हादसात मामूल बन गए, गाड़ियां खटारा होने लगी, सफर करना इंतहाई मुश्किल हो गया। बिल्कुल ये रोड बिल्कुल टूटी हुई है, 10-15 साल पहले बनी थी, उसके बाद अब ये टूट फूट का शिकार है। और सुबह सुबह स्कूल बच्चों को छोड़ने जाते हैं तो बहुत से हादसात होते हैं इस रोड के ऊपर। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मेहरबानी करें, इन सड़कों को बनाएं। शहरियों का कहना था कि बाईपास रोड 10 साल से टूट फूट का शिकार है, सफर करना इंतहाई दुश्वार हो चुका है। ये रोड जो है ना, ये जो बहुत 10-12 साल हो गए हैं, ये जो रोड मुरम्मत नहीं भी हुआ, सारे खड्डे खड्डे हैं, आने जाने का बहुत रास्ता है, यहाँ पे बहुत गाँव में लगते हैं, यहाँ आने जाने का बहुत मसला है यार। ये हादसे हो जाओ चाह जाए, रोज हादसे जब मोटरसाइकिल, ये बनाई जाए, हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं ये बनाएं। ते सारी टुटी पई आ, ट्रालियां चलदियां ते मोटरसाइकिल चलदे, कारां चलदियां, रोज हादसात हुंदे आ। ये बननी चाहिए है जी हुकूमत वास्ते, अगे अपील है साडी भी, साडी रोड तैयार होनी चाहिए है, बड़े हादसात हुंदे हैं जी। शहरियों ने हुकूमत से हंगामी बुनियादों पर बाईपास रोड को असर-ए-नो तामीर करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद सादिर के साथ राना इमरान सईदी, रोही, अलीपुर। डेरा गाजी खान में रेलवे रोड कचहरी चौक के करीब टूट फूट का शिकार, सड़क को सीवरेज लाइन डालने के लिए तोड़ा गया जो अभी तक नहीं बनाया जा सका। रही सही कसर सड़क पर जमा सीवरेज के पानी ने पूरी कर दी। डेरा गाजी खान में जिले और म्यूनसिपल इंतजामिया की मुबैना नाअहली रेलवे रोड कचहरी चौक के करीब अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। रही सही कसर अब सड़क पर जमा सीवरेज के पानी ने पूरी कर दी। सड़क पर जमा गंदे पानी की वजह से शहरियों को गुजरने में शदीद परेशानी का सामना है। कम से कम तकरीबन 1.5 साल हो गया है, मुश्किलात हैं, ना आने जाने का रास्ता है, ना कस्टमर आते हैं हमारे, हम बहुत परेशान हैं। वो वाली साइड तो वो सारी मुरम्मत कर देते हैं, पानी निकाल देते हैं। अभी भी सुबह से गाड़ी आई है, थोड़ा सा पानी निकाल के चली गई है, ये फुल है। 2 दफ़ा हम दफ्तरों के TMA के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रेलवे रोड के ताजिर भी टूटी फूटी सड़क पर सीवरेज का पानी जमा होने से परेशान हैं। दुकानदारों का कहना था कि कई माह से ये मसला दरपेश है, मुतादिद बार शिकायत भी की गयी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। काफ़ी सारी परेशानी है, दे पे वो सारा चिकड़ है, कोई रास्ता कहीं नहीं, कोई कशे कहीं नहीं, कोई हुकूमत कोई तवज्जो कहीं नहीं परेशान है सारा। दे पे पैदल लेडीज है, जब मर्द पैदल टोर टोर करने परेशान थे बनते। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस मसले को मुस्तकिल तौर पर हल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। बहावलपुर इंतजामिया मिलावट माफिया के खिलाफ इन एक्शन। कराची चौक से गंदी चर्बी से साबुन तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने पंजाब फूड अथॉरिटी के हमरा छापा मारकर मिनटों के हिसाब से चर्बी बरामद कर ली है। उनका कहना था कि चर्बी दिगर अशिया की तैयारी में भी इस्तेमाल की जाती थी। बहावलपुर इंतजामिया शहरियों को मिलावट से पाक अशिया की फराहमी के लिए कोशां। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अदील खान ने कराची चौक से गंदी चर्बी से साबुन तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। इस मौका पर पंजाब फूड अथॉरिटी के हुक्काम भी उनके हमराह थे। ये आपको नजर आ ही रहा है, यहाँ पे खड़े होना बड़ा मुश्किल है। हम लोगों ने 2-2 मास्क पहने हुए हैं, इतनी ज्यादा स्मेल है यहाँ पे और कोई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं है। चर्बी को इस तरीके अजीब तरीके से ये यहाँ पे पिघल रही है, उसके सोप वगैरह बना रहे हैं। बहुत बड़ा हेल्थ हैजर्ड है ये यहाँ पे। हम कोशिश कर रहे हैं कि बहावलपुर जो है वो पंजाब के अंदर मोस्ट हाइजेनिक सिटी हो। पंजाब फूड अथॉरिटी के अफसर का कहना था कि चर्बी दीगर अशिया की तैयारी में भी इस्तेमाल की जाती थी। उन्होंने मजीद कहा कि बहावलपुर शहर में गैर मेयारी अशिया की फरोख्त नहीं होने देंगे। ये तकरीबन जो है ना ये 1800 किलो जो है ना ये ऑयल जो प्रिपेयर्ड था और इसके अलावा जो है ना ये तकरीबन आई थिंक 3 टन के मुताबिक जो है ना ये जो चर्बी जो इनके पास प्रोड्यूस है जिससे ऑयल ये निकाला गया है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी का कहना था कि शहरियों को मियारी अशिया की फराहमी के लिए कोशिशें जारी हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर।
पंजाब की निगरान हुकूमत कपास की बेहतर पैदावार के लिए सरगर्म। निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की खुसूसी हिदायत पर सूबाई वज़रा एसएम तनवीर और बिलाल अफजल का जहानिया का दौरा। वज़रा ने सैलाबज़दा इलाकों का भी विजिट किया। पंजाब की निगरान हुकूमत ज़राअत की तरक्की के लिए कोशां। निगरान सूबाई वज़रा एसएम तनवीर और बिलाल अफजल ने कपास की बेहतरीन पैदावार के लिए अपनी टीम के हमरा जहानिया का दौरा किया, जहां उन्होंने नीलम सीड्स के कपास के नुमाइशी प्लाट का विजिट किया। फोर ब्रदर पे मैं गया था और फिर मैं नीलम सीट पे आया हूँ और देख के बहुत खुशी हुई है। यानी कि यहाँ पर वो वैरायटीज़ पे काम हो रहा है जो दुनिया में इस लेवल पे हो रहा है और इंशाल्लाह ये वैरायटी जैसे एक प्रोसीजर है जिसके तहत ये पास होती हैं, साल 2 साल 3 साल जैसे जैसे पास होती जाएंगी तो सेम लैंड के ऊपर हम अपनी यील्ड को डबल कर लेंगे और इंशाल्लाह वो दूर नहीं है जहाँ पर 20 मिलियन बेलें इस मुल्क में आएंगी। माहिरीन ज़राअत ने सूबाई वज़रा को कपास की पैदावार, कपास की क्वालिटी और कपास पर हमला आवर सिंडियों और बीमारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि ज़िला खानेवाल में कपास की औसत पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा मुतवक्के है। इस मौका पर निगरान सूबाई वजीर एसएम तनवीर ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से काटन की रिकॉर्ड पैदावार होगी। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब खास तौर पर लोधरा के करीब सैलाब की सूरत-ए-हाल का जायजा लेंगे। सैलाब ज़दगान को खाना, रिहाइश समेत मिलने वाली दीगर सहूलियात को भी देखेंगे। और हमारे मिनिस्टर बिलाल अफजल साहब, हम दोनों यहाँ पर आए चीफ मिनिस्टर के कहने के मुताबिक, क्योंकि सीएम साहब ने कहा कि पानी का रेला अभी लोधरा से बेहतर है तो फौरी तौर पे उस पर जाके हम यहाँ पर बैठ के और देखेंगे कि कहीं गलती तो नहीं हो रही, लोगों को खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, रेस्क्यू टीम प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं।